Thank you, Pasigat Press Club. We, the All Adi Youth Association (AYA), is issuing this notice to highlight several critical issues impacting our community. As a responsible organization, AYA aim to address this concern and work towards the betterment of our society. तो आज मैं आप सब व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ, आया आज यहाँ 6 पॉइंट लेके आया है। नंबर 1 ड्रग एब्यूज़ के बारे में, नंबर 2 इलीगल गैम्बलिंग का बारे में, नंबर 3 इलीगल इमिग्रेंट्स का बारे में, और जो पटाखा ड्यूरिंग फेस्टिवल्स फुटाया जाता है उसके बारे में, प्राइवेट स्कूल्स का जो RTE एक्ट के तहत चेकलिस्ट है उसके बारे में इन कनेक्शन टू द दोनी संगो इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड मेगा डैम प्रोजेक्ट इन अडी बेल्ट। तो मैं ड्रग एब्यूज़ से चालू करना चाहता हूँ। A maniac to our society, I strongly condemn the use and trafficking of drugs. We stand behind Sri Guman Muje, President Anti-Drug Association, Anti-Drug Arunachal Pradesh, Anti-Drug Initiative, and urge citizens to report any suspicious activities supporting to healthier Arunachal Pradesh. Drug abuse affects not only individuals but also families and communities. Let's join hands and eradicate this maniac and create a safer environment for our youth. Adi pahim ngolu bia, ngolu drugs use la inam rego hologa, adi family loga 70% hupak effect dung dalok hologa inkwama antaram padung. Among the 100 boys and girls in Adi community, 70% is affected by the drug abuse. Drugs users pebul ikai, iname ane abu ekom problem boje ko padung dalok omo kedar future ekom secure ma. Inam laga pe aya ngoluk support me gumun muje ke hana amiem lamkulo dangmen gadola ngoluk Adi hime drug free environment को बिदोप पे अमला हिलो सबमिट दो दलोक के नोलुम तका में है पोकान दो आदि अन्य अबू किधर दलोक के बिरमे बिरो किधर नोलु any suspicious activities को काय मिलो इनको में appropriate forum लो दलोक के appropriate authority लो इनको menga हिमा पे report em ilangka aya em kom report langka embom dola drugs em ngolu mane solidarity ko bibo hidula gumun muje kehana strongly support bohidola drugs em adi len hokke kakumado pe ila pe emla try lajuka de aya ke kumnam de lok second illegal gambling hi kapali dune family takama hologe abar poi hare kom drain idung delok hok mima milo momendu mena kom hog lendung delok social instability family instability kom lendung iname illegal gambling him ngolu takame adi em hina takame milidola adi len hok hatai lang ko juga amla ngololum takam fieldung delok dekana activity kai mulo आया एम पोकन लंका आया फ्रंट एक्शन लाए दलोक पुलिस एम रिपोर्ट लंका दक एक्टिविटी एनी कॉर्नर लो एनी सेक्शन लो एनी इंको लो कॉलोनी लो दमे हैंको कम माने कादोला महुम्मा का रिपोर्ट लंका दलोक इलीगल इमिग्रेंट a concern for community safety not only for Adi community illegal immigrants का वजह से जो इम्पैक्ट्स सारा दुनिया में हो रहा है आप सब वाकिफ़ है। मैं प्रेस के माध्यम से आप सबको ये आगाह करना चाहता हूँ कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स होता है इसको यहाँ से हटाने में
हम सबको अपना हाथों से हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के इस मुहिम में अपना योगदान देना है। और मैं अडी लैंड के हर कॉन्ट्रैक्टर और हमारे जो अडी पीपल है उन सब से ये गुजारिश करता हूँ कि ऐसा कोई सस्पिशियस कैरेक्टर या ऐसा कोई सस्पिशन कोई भी ग्राउंड में आपको दिखने को मिलता है तो प्लीज़ इमीडिएटली रिपोर्ट कीजिएगा। टीम आया उसके लिए रेडी है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को हम साथ लेते हुए इस मुहिम को चलाएंगे। और 4th नंबर पॉइंट, बॉम्बिंग एंड पटाखा ड्यूरिंग फेस्टिवल। देखिए, इंडिया में तो पटाखा फुटाना, क्रैकर्स बैन है, लेकिन few business communities, they are engaging in this activity, and which is supposed to be very affecting to their existence. But it is my earnest request to all the business communities and all the people of Adi land, let us discourage the uses of pataka in our land so that we can mitigate with the फायर इंसिडेंट्स जो पटाखा का वजह से कभी कभी होता है। जैसे इस साल गया साल ये में कोरंग बस्ती में हुआ, उस तरह का हर कॉर्नर में पटाखा का वजह से फायर इंसिडेंट देखने को मिलता है। प्लस यहाँ से जो नॉइस पोल्यूशन होता है, इवन लाइफ स्टॉक और हमारे जो रोज़मर्रा के ज़िंदगी में जीने वाले लोगों को ये बहुत ही खराब से इफेक्ट करता है। इस चीज़ को हम अडी लैंड में बैन करता है, ये आया का कहना है। बम्बिंग और पटाखा ये हुआ। प्राइवेट स्कूल चेकलिस्ट। देखिए, दोनी सांगो स्कूल के इंसिडेंट के बाद आया बहुत से स्कूल्स में गया और ये RTE एक्ट के तहत 22 पॉइंट्स ऑफ चेकलिस्ट है, जिसको फुलफिल नहीं करता है तो कोई स्कूल रजिस्टर नहीं होगा और वो स्कूल इलीगल होता है। तो देखा जाए तो हमारे पासीघाट के विसिनिटी में जितना प्राइवेट स्कूल है 22 चेकलिस्ट को छोड़िए, मैंने मिनिमम जो क्राइटेरिया है उसको भी फुलफिल नहीं करता है। तो to ensure the quality education for the future generation, I request parents and guardians to ensure private school fulfill RTE Act norms. We will take serious actions against defaulter. Quality education is essential for our children's future, and it's our collective responsibility to ensure they receive the best possible education. Holog laga pangolo इनको स्कूल रनिंग फैमिलीज द लोग स्कूल अथॉरिटीज DDSE तका में हक पकंदू नोलू चेकलिस्ट से फुलफिल मा स्कूल ही हिंग एंसुइंग इनको हक सेशन स्टार्ट मांगा दपे नोलू हिम चेकलिस्ट से फुलफिल ला पे हमने ट्राई लंका द लोग DDSE में को मोलुदू चेकलिस्ट फुलफिल माना स्कूलम रजिस्ट्रेशन लगा परमिशन बीमा पका देख लगा पे कपल इदू ने दोनी सांगो के हना इंसिडेंट लेंदो इलांगो लोहिमे सीरियसली तका में काबो हिला जुका मलांगो अडी दोलुंगम अडी कम्युनिटी में आया फील्ड दलोक मेगा डैम प्रोजेक्ट। लास्ट पॉइंट for today's sitting, we need a need for awareness and discussion. Aya is conducting a serious study on the mega dam project. We invite citizens to participate in discussion, awareness program. This project has significant implication for our community, and it's crucial that we are informed and involved in the decision-making process. So I feel by
डिस्टेबल। और ये आज के इस प्रेस के माध्यम से मैं राज्य सरकार को भी ये अपील करना चाहता हूँ कि मेगा धाम प्रोजेक्ट के लिए कोई भी डिसीजन मेकिंग या डिसीजन लिया जाएगा अडी लेन के लिए, आया को भी वहाँ इन्वॉल्व कीजिए। हमारा भी सर्टेन पॉइंट्स है जिसको आपको भी सुनना है, आपका भी कोई अप्रोच होगा जो हम भी सुन पाए, और हमारा अडी लेन का बेनिफिट के लिए आपका कोई सजेशन या तो कोई अपकमिंग डेवलपमेंट्स आता है, आया उसके साथ देने के लिए रेडी है। बट डिप्राइविंग आवर पीपल, इफ योर पॉलिसीज गोस अगेंस्ट माई पीपल, आया विल स्टैंड इन फ्रंट और हर मुमकिन कोशिश आया करेगा सो दैट कि हमारा जो अडी लैंड के अफेक्टेड पीपल्स है उनको बेनिफिट मिले। विद दैट फ्यू लाइन्स आज मैं यहाँ अपना इस अपील को और ये नोटिस को विराम देता हूँ, और सारे चैनल के माध्यम से इस कॉपी को आप सर्कुलेट किया हुआ मिलेगा, ध्यान से पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए कि ये सर्टेन पॉइंट्स हमारा डूबता हुआ जो अभी टोटरिंग पोजीशन है अडी के फ्यूचर के लिए, उसको शायद एक इंच तक सही रास्ते में लेके जाए। ये विद दैट होप हम आप सबसे ये गुजारिश करता है कि कमेंट करें, ट्रोल भी हो, कुछ भी हो, लेकिन अपने कम्युनिटी के लिए सही सोचते हुए हर कोई अपना योगदान और अपना विचार आया को भी दे। थैंक यू। सर एक चीज जानना चाहेंगे रिगार्डिंग योर नंबर 4 पॉइंट ना, जैसे कि आपने कहा मूविंग ऑफ पद का ये सब इलीगल, इसको टोटली अनलीगल में सेल्फ स्टैंड पे बिल्ड करना चाहिए आया की तरफ से। लेकिन ऐसे देखा जाता है कि बड़े बड़े फेस्टिवल में हमेशा बड़े बड़े लार्ज क्वांटिटी में vodka फेस्टिवल सेलिब्रेट करके से यूज किया जाता है फायर क्रैकर्स, तो उनको भी क्या रेस्ट्रिक्शन आया की तरफ से होंगे या फिर सिर्फ आप जितने भी गरीब लोग हैं उनको ही कह रहे या फिर जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उनको भी एक्शन नहीं? नहीं, इस कंसर्न में हम आपको क्लियरली ये बताना चाहता है कि आपका जो सेलिब्रेशन है किसी को इफेक्ट ना हो, आप अपने कंपाउंड के अंदर विथ साउंड प्रूफ कोई एनवायरनमेंट में, या तो आउटस्कर्ट कोई आपका एस्टेब्लिशमेंट हो जैसे फार्म हाउस वगैरह में आप सेलिब्रेट करता है, उसके लिए तो हम आया कुछ नहीं कहते। लेकिन बाज़ार जैसा जगह में, हाईवे जैसा जगह में, बस्ती जैसा जगह में जहाँ बहुत वर्नरेबल होता है फायर इंसिडेंट के लिए, ऐसा जगहों में बिल्कुल आया रेस्ट्रिक्ट करेगा, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, सीएम हो या पीएम हो। ओके सर, पर आपने इसके पॉइंट पे ये कहा है कि एनवायरनमेंट को डैमेज करता है, हाँ हाँ, इफेक्ट करता है, तो फार्म हाउस ले लीजिए, कोई भी आउटस्कर्ट ले लीजिए, तो एनवायरनमेंट को डैमेज कर ही रहा है, तो क्या आप उस पे एक्शन ले लेंगे? नहीं, देखिए, एनवायरनमेंट को डैमेज करता है ये तो सही बात है, बट हम सब का भी अपना लिमिटेशन रहेगा कि हम किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस के आया के नाम से कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाएगा या हम कुछ, ये तो हम बिल्कुल नहीं बोल सकता है। बट पब्लिक प्लेसेस में जहाँ भीड़ भड़का जो जगह होता है, ऐसा जगहों में पटाखा बिल्कुल बैन होना चाहिए, और आया ये कोशिश जरूर करें। सर रिगार्डिंग योर नंबर 1 पॉइंट जो आपने ड्रग्स एब्यूज का बारे कहा कि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है हमेशा पुलिस जितने भी ड्रग्स पेडलर है उनको पकड़ते हैं, पर अंत में जाके वो कोर्ट में प्रोसीड्यूर लैप्सेस का कारण रिहा हो जाता है जो भी ड्रग्स पेडलर होता है। तो क्या आया की तरफ से जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट है उनको भी गवर्नमेंट से अपील करना चाहेंगे कि एक अच्छा उनको भी प्रैक्टिस किया जाए ये सब नारकोटिक्स काम में, क्योंकि बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट प्रोसीजर लैप्सेस के कारण जितने भी पेडलर होते हैं वो कोर्ट में रिहा हो जाते हैं। हाँ, ये बात तो सही है, मैं पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया। जो यूजर्स है उनको आप लॉकअप में भी रखने के लिए इजाज़त नहीं मिलता है,
ये जो नारकोटिक एक्ट है, इसके बारे में एक रिफॉर्मेशन लाना बहुत ज़रूरी है सरकार के तरफ से। और नारकोटिक सेल से भी हम ये गुजारिश करना चाहेगा कि इसमें एक ऐसा रेमेडी लेके आइए सो दैट कि हम जो पेरेंट्स है अपने बच्चों को ड्रग से दूर रखना चाहता है और उसको आइसोलेट करना चाहता है, बट सरकार का जो नॉर्म्स है, नारकोटिक एक्ट आपको ये परमिट करता है कि यूजर कैन पोजेस सम अमाउंट ऑफ ड्रग्स विथ हिम, ऐसा करके जो एक नियम है जिसका वजह से हम सब फेल हो जाता है, पकड़ते हुए भी बच्चों को ड्रग से आइसोलेट नहीं कर पाता है। माना कि सरकार के तरफ से ये OFT बोलता है क्या, एक ऐसा वो लोग को रिलीफ के लिए सरकार भी मुहिम चलाता है, वो भी सही है, बट इसको सही ढंग से हम लोग को फाइट करना है। तो ये आपका उनको 1-2 दिन नहीं, कुछ मैकेनिज्म के साथ में ड्रग से आइसोलेट करना बहुत जरूरी है। लास्ट पॉइंट सर, ये रिगार्डिंग 6 पॉइंट मेघालय प्रोजेक्ट के बारे में सर, हमें सोशल मीडिया में देखने को मिलता है कि बहुत सारा बस्ती कभी कभी साइन करते हैं, कभी फिर वो साइन को वापस ले लेते हैं। तो अभी तक इस सिचुएशन में हमारा जितने भी आदिवासी और अफेक्टेड विलेजर्स है, क्या आया के दिन उनको मिलने गए या फिर इस बीच उनको मिलेंगे, और अभी तक आया का क्या कहना है ये डैम के बारे में? देखिए, हम जब से आया फॉर्मेशन हुआ है, लोग कहता है कि आया इस इशू में क्यों बात नहीं करता है, लेकिन जब जब मौका मिला हमारे तरफ से हमने अपना स्टैंड दिया। वहाँ एक गैदरिंग हुआ गेकू में, वहाँ भी हमने अपना स्टैंड दिया, वही स्टैंड में आज भी लेता हूँ। हमको बहुत ज़रूरी है कि हम एंटी डैम हैं, सरकार हमारा एगेंस्ट है, हम सरकार का एगेंस्ट है, उनको हम कुछ भी अनाप शनाप बोलना है, ये मेंटालिटी को छोड़ के, और जो PFR वगैरह साइन करता है, अपना को प्रो डैम बोलता है, वो क्या ये जानता है कि इस मेगा डैम का वजह से उनका फ्यूचर कहाँ तक इफेक्ट हो रहा है? आया क्लियरली आप सबको ये बताना चाहता है, जो भी व्यूअर्स और लिसनर्स है, आया का एक अप्रोच रहेगा, आया समझने का कोशिश करेगा। अभी दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो बन रहा है, वहाँ का MOA हम ऑब्टेन करने का कोशिश करेगा, और तत्व में जो दाम बन रहा है उससे भी हम MOA ऑब्टेन करने का कोशिश करेगा। हम EIA लेके पड़ेगा और EMP लेके पड़ेगा, DPR लेके पड़ेगा, इनंडेशन मैप देखेगा, उसमें जो इम्पैक्ट्स होता है, तो साइड बाय साइड जो सियांग अपर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है वह भी यही रहेगा। तो उस कंसिडरेशन को लेते हुए आया विल गिव आवर स्टैंड इन couple of months. Thank you. Sir, regarding this awareness and discussion, तो बहुत सारे लोग हैं जो PFR के लिए साइन कर चुके हैं, हाँ, मान चुके हैं, पर उन लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, because the government also didn't give the awareness। तो आप लोग अवेयरनेस और डिस्कशन कब करने का प्लान कर रहे हैं? नहीं, देखिए, आया बहुत रिस्पॉन्सिबल एक ऑर्गेनाइजेशन है, और आया अपने आदि पीपल के साथ आदि लैंड में बिल्कुल अन्याय होने नहीं देगा। ये कसम हमने अपना ओथ टेकिंग में लिया है, और उसी के चलते हम हर तरह से ये कोशिश करेगा कि वो जो PFR साइन भी किया हो वो भी समझे, और जिन्होंने नहीं करके अभी तक एंटी डैम खुद को बोल रहा है, वो भी अगर डार्कनेस में है तो ब्राइटर वर्ल्ड में आए और समझने का कोशिश करे कि दाम क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है, फ्यूचर सिक्योरिटी क्या है। आया बिल्कुल इसमें वर्कआउट करेगा, सबको समझाने का कोशिश करेगा।